لمبردارا خیر بھائی کا بازو برابر لمبردارا خیر بھائی کا بازو برابر لبے دریا لمبردار بھی کام آ گیا بسم اللہ بے حضرت زینب کی چادر بسم اللہ بے حضرت زینب کی چادر کسی بھی ایمان نے خط اپنے مسیحا کو لکھا حال بیماریوں کا بیٹی نے بابا کو لکھا جو بھی ارمان تھا دل میں شے والا کو لکھا اور سلام اپنا بھی ثانی زہرا کو لکھا اور سلام اپنا بھی ثانی زہرا کو لکھا دل میں خوش تھی کہ میرا خجو پہنچ جائے گا ہے یقین کوئی لینے کے لیے آئے گا یقین کوئی لینے کے لیے آئے گا یقین کوئی لینے کے لیے آئے گا خط میں الخاب یہ بے کس نے کیا تھا مرحوم چاہنے والے پدر میرے امام مظلوم رات دن روتی پڑی رہتی ہوں میں یہاں مغموم آپ تو بھول گئے خیر یہ میرا مخصوم نہ گلا تم سے نہ کوئی شکایت بابا ہم مبارک و سکینہ سے محبت کروا ہم مبارک و سکینہ سے محبت کروا تم کو نہ صحیح مجھ کو ہے تم سے الفت کسی صورت مجھے دکھلاؤ تم اپنی صورت جانتی ہوں کہ سکینہ بہت شفقت اچھا ہے بابا بہن کی میں کروں گی خدمت مجھ کو بلوا کے وہاں میرا بھی دل شاد کرو لوگ نیزی میں سکینہ کی مجھے یاد کرو لوگ نیزی میں سکینہ کی مجھے یاد کرو لوگ نیزی میں سکینہ کی مجھے یاد کرو کو مرحوم تھا مادر فرخندہ سیاہ سخت بابا کی طرح کر لیا تم نے بھی جگر آگ بجنے کی نہیں لیجیے اب جلد خبر ورنہ بیمار کب ہوتا ہے دنیا سے سفر نہیں امید کے بچ جائے یہ مستمع دودھ بخش دو بیمار کو اما تھا رقم حضرت زینب کو پھوپھی نے قصاص تم کو بھیا علی اکبر سے محبت ہے کمال ہائے ہر دم مجھے رہ رہ کے آتا خیال کہ میرے بھائی پہ بھاری 18واں سال ہاں تصدق کے لیے دیر
न फरमाइएगा। सदका होने के लिए भाई को बुलवाएगा, होने के लिए भाई को बुलवाएगा, होने के लिए भाई को बुलवाएगा। आलमदार को तहरीर के अब्बास चचा दूर उफ्तादा भतीजे से मैं तुम भी खफा सुनते हैं आपकी हर बात को मेरे बाबा। मुझको बुलवाइए या लाइए उनको मैं फिदा चूमूंगी उनके कदम तुमको दुआएं दूंगी उनकी भी और तुम्हारी भी भलाई लूंगी भी और तुम्हारी भलाई लूंगी उनकी भी और तुम्हारी भी भलाई लूंगी। अकबर को के बाप के प्यारे और भूपी जान के भी राज दुलारे अकबर मेरी बाबा की मेरे बाबा की ज़ईफ़ी के सारे अकबर है ये बीमार बहन गोर का नारे अकबर वादा ले जाने का था देखिए कब आते हैं आप तो आते नहीं खल्क से हम जाते हैं आप तो आते नहीं खल्क से हम जाते हैं। ये थे अली जनाब मोहम्मद अली वफाज़ अब्दुल्ला जो मरसिया खानी के फ़रज़ को अंजाम दे रहे थे और तमामी शुरका तमामी हाज़रीन मुसाब हो रहे थे मौला को फरसा दे रहे थे। आज जो मुहर्रम है हज़ारों आज मदीने का काफ़िला करबला पहुंच चुका है। इसी मुनासिबत से पूरी दुनिया में मजलिसें बर्पा हो रही हैं। ये पंजतन सोसाइटी के अशरे मजालिस की आज तीसरी मजलिस है शब दीन की मजलिस है ये जिसको खुद करबला के उन्वान से पढ़ा जाता है। तमाम नौहे मजलिस मतन इसी उन्वान से पढ़े जाते हैं। आइए हजरात ऐ मेरे मालिक यूं ही फर्शे अज़ा बिस्तार है ऐ मेरे मालिक यूं ही फर्शे अज़ा बिस्तार है जिक्र से मजलूमियत के जुल्म शर्मिंदा रहे जिक्र से मजलूमियत के जुल्म शर्मिंदा रहे ऐ मेरे मालिक यूं ही फर्शे अज़ा बिस्ता रहे। हज को उम्रे से बदल कर शाह ने आवाज दी हज को उम्रे से बदल कर शाह ने आवाज दी करबला ये चाहती है खाने काबा रहे करबला ये चाहती है खाने काबा रहे। आइए हजरात पेशखानी के लिए आमादा हैं जनाब इम्तियाज हुसैन साहब जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं लेकिन मुकीम कुवैत है इस वक्त। मैं उनसे बसर अदब गुजारिश करता हूँ कि वो मौला की खिदमत में पेशखानी का शरफ हासिल करें। आप तमामी हजरात एक नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं पंचम सोसाइटी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया और हबीब खुदा खत्मुन नबिया बुलंदतर सलावत। खलील आके तुमको नबी बुलाते हैं खलील
کہ تم کو نبی بلاتے ہیں، حسین داشت میں دین خدا بچاتے ہیں، خلیل آپ تم کو نبی بلاتے ہیں، لکھا ہے عالم غربت میں ایک حسین نے حق لکھا ہے عالم غربت میں ایک حسین نے حق لٹان جان کو اپنی حبیب آتے ہیں، حسین داشت میں دین خدا بچاتے ہیں، تڑپ رہی ہے فضا دیکھ کر ادے صغرا، تڑپ رہی ہے فضا دیکھ کر ادے صغرا، اذان صبح کی اکبر ادھر سناتے ہیں، حسین داشت میں دین خدا بچاتے ہیں، حسن کی لاج رکھی کربلا قاسم نے، حسن کی لاج رکھی کربلا قاسم نے، بدن کے ٹکڑوں کو شبیر چن کے لاتے ہیں، حسین داشت میں دین خدا بچاتے ہیں،
وہ جس کے باتوں پہ بیبیوں کو ڈھارس تھی، وہ جس کے باتوں پہ بیبیوں کو ڈھارس تھی، لبے فرات پہ غازی کٹانے جاتے ہیں، روئے گی دیکھ کے زینب بیٹوں کو، روئے گی دیکھ کے زینب اپنے بیٹوں کو، علی و جعفر تیار بن کے آتے ہیں، پسر کے سینے سے برچھی نکال کر ہائے، پسر کے سینے سے برچھی نکال کر ہائے، حسین ماں کو یہ لاشیں جوان دکھاتے ہیں، سکینہ کہتی ہے بانا چھوڑ کر جاؤ، سکینہ کہتی ہے بانا چھوڑ کر جاؤ، گئے جو رنگ کو وہ پھر پلٹ کے آتے ہیں، جواد دیکھ کے لاشاں پکاری بنت علی، جواد دیکھ کے لاشاں پکاری بنت علی، ردا سروں پہ نہیں ہم یہاں سے جاتے ہیں،
حسین داشت میں دین خدا بچاتے ہیں خلیل ہو کہ تم کو نبی بلاتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے خاک پائے اہل بیت سید آصف حسین رضوی صاحب کو ممبر پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله حضرات گرامی قدر مومنین، قرآن حکیم کا انتہائی مشہور معروف سورہ سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور آپ کے اور ہمارے درمیان یہ تیسری گفتگو ہے جس میں مسلسل آپ کی خدمت میں سیرت طیبہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روشنی میں آپ کی خدمت بابرکت میں کچھ معروضات جو کل عرض کیے اسی کی آج تھوڑی سی تفصیل اور ارشاد الہی ہو رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر شے جو زمین اور آسمان کے مابین ہے وہ تسبیح الہی میں مصروف ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے کہ کون سی شے کس انداز میں تسبیح کر رہی ہے، لیکن پروردگار کے اعلان کے بموجب جو بھی زمین اور آسمان کے مابین ہے وہ ہر ایک جو ہے وہ تسبیح میں مصروف ہے. تسبیح خالق کا انداز جدا ہو سکتا ہے لیکن تسبیح سبھی
मखलूकात कर रही हैं। और अल्लाह ने सबब खिलकत में इंसान के लिए भी वमा खलक़तुल, मैंने नहीं खल्क किया किसको, जिनों को और इंसानों को, मगर ये कि वो हमारी इबादत करें। इंसान और जिन्नात की खिलकत का मकसद भी तस्बीह इलाही है। कौन किस अंदाज में तस्बीह कर रहा है, मैंने अर्ज किया कि ये हमें नहीं पता चलता, लेकिन कायनात का हर जर्रा तस्बीह में मशगूल है। और मशगूलियत का आलम यह है कि कभी अपनी तस्बीह के अंदाज में छोटी सी जान, नन्ही सी जान जब किसी नबी से अर्ज कर रही होती है कि मैं अपनी इबादत में मसरूफ, तो नबी अल्लाह को भी ताज्जुब हो जाता है कि अच्छा इतनी नन्ही सी जान में भी अपनी इबादत का इतना ख्याल है। सुभान अल्लाह। बड़ा मशहूर वाकया है कि जनाब सुलेमान, जिनको अल्लाह ने जनाब सुलेमान को चूंकि मंतिक़ के तायर सिखलाई थी, हर चरिंद और परिंद की आवाज जनाब सुलेमान तक पहुंच जाती थी। कुरान गवाह है कि अल्लाह ने ये इतना बड़ा एजाज जो जनाब सुलेमान को अता किया था, उस अताए परवरदिगार पर जनाब सुलेमान को हर शय की तस्बीह जो है वो सुनाई भी देती थी और उनका अंदाज तस्बीह भी जनाब सुलेमान देखते भी थे। एक दिन पूरे लश्कर के साथ जनाब सुलेमान निकले, देखा कि चूटियों का एक बहुत बड़ा गिरोह और लश्कर जो है वो निकल के जा रहा है, लेकिन उनका जो सरदार है आगे आगे वो कह रहा है कि सब लोग अपनी अपनी बिलों के अंदर चले जाओ, क्योंकि लश्कर आ रहा है और सुलेमान का लश्कर ये कसीर तादाद में आ रहा है, ऐसा ना हो कि ये लश्कर तुम्हें कुचलता हुआ निकल जाए। जनाब सुलेमान ने जैसे ही आवाज सुनी उनके सरदार की, कहा जाओ इसे गिरफ्तार करके लेके आओ। इस जगह पे मरहूम अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब का किबला का अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, उनका एक हसीन तरीन जुमला है। फरमाते हैं कि अब दुनिया बताए कि उस वक्त जिस वक्त जनाब सुलेमान ने कहा होगा कि इस चूटियों के सरदार को गिरफ्तार करके लाया जाए, तो वो कौन सी पुलिस गई होगी जो उसे गिरफ्तार करके ला रही होगी। कहा ज्यादा से ज्यादा पुलिस में मच्छर ही भेजा होगा। और जनाब सुलेमान ने जिस वक्त गिरफ्तारी का ऑर्डर किया, उसको लाने के लिए जो भी पुलिस गई वो गिरफ्तार करके जब लेके आई, तो जनाब सुलेमान ने अपने हाथों पे उठा कर उससे पूछा, क्या अंदाज़ तखातुब था एक नबी का इस नन्ही सी जान को। और मैं कहता हूं कि अल्लाह ने जिस मखलूक को पैदा किया है उसमें इतनी इबरतें इंसान के लिए रखी हैं, क्योंकि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने सबसे सुपीरियर इंसान को बनाया है। हर शय, हर मखलूक में उसके लिए सबब इबरत भी रखा है। अब है तो बहुत नन्ही सी जान। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ अपने जवानों से कि सबक लेना हो तो चूंटी से सबक लो। वो कहते हैं सबक लो, चूंटी से सबक ये लो कि तुम कभी कभी होता यह है कि हिम्मत हार के ये कह रहे होते कि अब ये हमसे नहीं होगा। नहीं होने का क्या सवाल है, जब इतनी नन्ही सी जान एक जगह एक मंजिल पर पहुंचने के लिए 10 मरतबा गिरती है और उठती है। अगर उसका टारगेट यहाँ पे है तो अगर वो 10 मरतबा भी गिरी तो पहुंचेगी वही। बार बार आप चूंटी को देखेंगे मंजिल वही होती है उसकी। और उसके बाद कुछ इबरतें तो ऐसी है चूंटी के अंदर की, अब आप गौर करें। सबब खिलकत में वैसे तो मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में बड़ी तफसील से चूंटी के बारे में एक निहायत खूबसूरत खुतबा दी है। लेकिन अब इस वक्त मैं जो जिक्र कर रहा हूँ जनाब सुलेमान का, जिस वक्त उसे गिरफ्तार करके लेके आए और हाथों में जनाब सुलेमान ने उसे उठाया और बड़े प्यारे अंदाज में जनाब सुलेमान ने पूछा, इतना बता दे कि तू जो कह रही थी कि अभी ये लश्कर आ रहा है और कुचलता हुआ निकल जाएगा, क्या हम नबी मासूम किसी को कुचलते हुए जाते? मासूम की ये शान नहीं है कि वो किसी पर बेजा जुल्म करे। उसने कहा, या नबी अल्लाह, मैंने इस वजह से नहीं कहा था, बल्कि आपके लश्कर की कसरत ही इतनी है। मैंने ये नहीं कहा था कि लश्कर आपका कुचल देगा या आपका कोई आर्डर है कुचलने का। चूंकि हमारी इबादत का वक्त हो रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि इबादत के वक्त में आपके लश्कर को देखने में हमारा ये वक्त जाया हो जाए। जनाबे सुलेमान को बड़ा अजीब सा महसूस हुआ और खुशी भी महसूस हुई कि जा तूने अगर इस इरादे से कि इबादत का वक्त कहीं निकल ना जाए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इबादत के वक्त का तूने ख्याल किया। लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे दे दे कि इस वक्त मैं अफजल हूं या तू अफजल है? क्या कहा जनाब सुलेमान ने कि जहां इतनी बड़ी खूबसूरत बात तूने प्यारी बात कही है कि मेरी इबादत का वक्त निकल जाता, तो इतना बता दे कि इस वक्त तू अफजल है या मैं अफजल हूँ। उसने भी बड़े प्यारे अंदाज में कहा, या नबी अल्लाह, अगर मैं कह दूं कि मैं अफजल हूँ तो ये भी कोई छोटी मुंह बड़ी बात नहीं।
अगर कल को तारीख लिखेगी तो यही लिखेगी जनाब सुलेमान ने एक मरतबा चूटी से मुकाबला हो गया था, पूछा था कि तू अफजल है या मैं, तो चूटी ने कह दिया था कि मैं अफजल हूँ, तो जाहिर है कि चूटी को वो बड़ी बात हो जाएगी, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। कहा फिर तू क्या कहना चाह रहे? उसने कहा या नबी अल्लाह इतना बता दे कि इस वक्त आपको कौन सी शय उठाए हुए? कहा मैं हवा के दोष पे सवार हूँ और ये पूरा सफर मेरा हवा के दोष पे चल रहा है। कहा आपको हवा उठाए हुए है ना? कहा हाँ मुझे हवा उठाए हुए, हवा के दोष पे मेरी सवारी चल रही है। कहा मुझे कौन सी शय उठाए हुए? अब जनाब सुलेमान ने कहा अरे तुझे तो मेरा हाथ उठाए हुए, मेरे हाथों में तू बुलंद है। कहा तो फैसला तो आपने खुद ही कर दिया, जिसे हवा उठाए हुए है वो अफजल है या जिसे नबी अपने हाथों पर उठाए हुए है वो अफजल है। सलावत भेजे मोहम्मद हैदरी यार सफदरी यार खैबरी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले उस नबी सी जान ने ये फैसला कर दिया कि जो नबी के हाथों पे आ जाए वो बुलंद हो, चाहे नन्ही सी जान ही क्यों ना हो। तो जो नबी के दोषों पे बुलंद हो गया, दोष मुबारक के रसूल पे बुलंद हो गया, उसकी जान क्या होगा? कहते हैं कि जनाब सुलेमान ने उससे कहा कि क्या खूबसूरत बात होने के कि इस वक्त मैं तुझे अपने हाथ पे उठाए हुए बुलंद किए हुए। अब ये जुमला जरा याद रखिएगा, उसने एक बात कही और बड़ी प्यारी बात कही कि मेरी इबादत का वक्त जाया हो जाता है, इस वजह से मैंने लश्कर से कहा कि सब के सब अपनी बिलों के अंदर चले जाओ। लेकिन बेअ नहीं, अगर ये वाकया कहीं दूसरी जगह फखर सुलेमान का ना मिले तो बात ही अधूरी रह जाएगी। कहते हैं जनाब मौलाए कायनात एक दिन सहरा के लिए निकले और खुद जनाब सलमान फारसी भी साथ में है। देखा कि बिल्कुल मंजर वही है, एक बड़ा कसीर सा लश्कर है चूटियों का जो अपनी बिलों से बाहर आ रहा है। तो जनाब सलमान फारसी पुकार के कहते हैं मौला पाक और पाकीज़ा है वो जात जो इनकी तादाद को जानती है। मौला ने कहा कि सलमान अभी तारीफ का हक अदा नहीं हुआ। कहा मौला कैसे तारीफ की जाए? कहा इस तरीके से तारीफ नहीं, ये तारीफ का हक अदा नहीं हुआ। तादाद की क्या बात कर रहे हो, तादाद तो मैं भी जानता हूँ, और इतना ही नहीं बल्कि ये भी जानता हूँ इसमें नर कितने हैं मादा कितने हैं। और क्या देखना चाहते हो, जो शुमाल में जा रहे हैं उनको जुनूब में, जो जुनूब में जा रहे हैं उनको शुमाल में, जो मशरिक में जा रहे हैं उनको मगरिब में, जो मगरिब में जा रहे हैं उनको मशरिक में फिरा दूं? जनाब सलमान ने कहा मौला ये तो जाहिर है कि देखना ही क्या, अब आपके साथ हूँ तो सुनना भी चाहता हूँ कि वो क्या कलाम कर रहे हैं। अब जनाब फखरे सुलेमान मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब इशारा किया जमीन, अबू तुराब ने इशारा किया तुराब को, तुराब बुलंद होने लगा। अब जनाब सलमान फारसी ने देखा कि क्या मंजर है, आगे आगे उनका लश्कर का जो सरदार है वो कह रहा है कि अपनी अपनी बिलों से बाहर आओ, जल्दी आओ, देर न करो, ताखीर न करो। क्यों? इस वजह से कि वक्त निकल जाएगा, वक्त निकल जाएगा। कल का जुमला याद है कि जनाब सुलेमान नबी से कहा था कि अब इस वक्त मेरी नमाज का वक्त हो रहा था, मेरी इबादत का वक्त हो रहा था, मैं इस वजह से अपनी तस्बीह में मशगूल होने के लिए अंदर जा रहा था, और यहाँ यह है कि जल्दी जल्दी बाहर आओ। मैं कहूंगा ये अंदाज बदल क्यों गया? कल तो कहा था कि मेरी इबादत का वक्त ज़ाया हो जाएगा, निकल जाएगा, आज कह रहे हो कि आज जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि अब ये मौका दोबारा नहीं आएगा, अब इबादत का वक्त नहीं है। कहा आज वो आ रहा है जिसके चेहरे पर नजर करना भी इबादत है। सलावत भेजे मोहम्मद। तो जनाब सलमान कहते हैं कि मौला क्या तारीफ करूं, कैसे करूं? आपने फरमाया कि जुमलों को बदल के और तरतीब बदल दो, इस तरीके से कहो कि पाक और पाकीज़ा है वो जात जो इनकी तादाद को ही नहीं बल्कि इनको खल्क करती है और इनको रिस्क देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस खालिक की तारीफ करो, उस राज़िक की तारीफ करो। यानी मौलाए कायनात ने इन दोनों जुमले में बता दिया कि खालिक भी वही है और राज़िक भी वही है, चाहे नन्ही सी मखलूक ही क्यों ना, नन्ही सी जान ही। और जनाब सुलेमान नबी अल्लाह के ज़माने में भी ये वाक़या आया था कि छोटी सी जान नहीं, नन्ही सी जान, जिनके बारे में इतना बड़ा वाक़या मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया तस्बीह के हवाले से। एक दिन समंदर के किनारे बैठे हुए देखा कि एक नन्ही सी जान छूटी बार बार लहरों का मुकाबला कर रहा, थपेड़ों का मुकाबला कर रहा। जनाब सुलेमान ने पूछा कहाँ तेरी जान, तेरी हकीकत ही कितनी है
और इस बुलंदो बाला लहरों का मुकाबला तो कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? उसने कहा या नबी अल्लाह, वैसे तो आपको मालूम है, मुझे क्या बताना, आपको तो सब खबर है, मैं क्यों बार बार लहरों का मुकाबला कर रही हूँ और जाने की कोशिश कर रही हूँ समंदर की तहों में। आपने फरमाया कि नहीं, फिर भी बता कि आखिर वजह क्या है। कहा अल्लाह ने इस समंदर की तह में दो पत्थरों के माबैन कुछ मखलूकात को खल किया है जिनका रिस्क मेरे दहन में रखा है, मैं उन तक पहुंचाने के लिए। दो पत्थरों के दरमियान समंदर की तहों में कुछ मखलूकात को अल्लाह ने खल किया है जिनका रिस्क मेरे दहन में रखा है। अब आप सोचिए कि अल्लाह समंदर की तहों में पत्थरों के दरमियान उन नन्ही सी मखलूक के भी रिस्क का इतना ख्याल रखता हो और उनके लिए असबाब मुहैया कर रहा हो, तो अशरफुल मखलूकात इंसान के लिए इस वसी वारी जमीन पर क्या उनके रिस्क का कोई ख्याल नहीं रखेगा? ये तो इंसान है कि बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, कभी कहता है कि पता नहीं हमारा रिस्क किसके हिस्से में। हालांकि हर शख्स का हिस्से का रिस्क अल्लाह ने पहले ही ऐसे ही मुअय्यन कर दिया है जैसे उसकी मौत। ये मेरा जुमला नहीं है, खुद मौला कायनात फरमाते हैं कि जिस तरीके से मौत का दिन मुअय्यन है वैसे ही रिस्क का दिन भी मुअय्यन है। जैसे जैसे हिस्से का रिस्क जिस दिन का जिस शख्स के तकदीर में उसकी किस्मत में है वो उसको मिलता रहता है, यहाँ तक कि मौत आ जाती है। एक दिन खुतबे में भी इरशाद फरमाया, एक शख्स ने खड़े होकर कहा, मौला अगर कोई शख्स अपने को शीशे के मकान में ऐसी जगह महसूर कर ले, बंद कर ले कि जहां से एक चूंटी का गुजर ना हो, तो कितने दिन तक उसका रिस्क चलेगा? जाहिर है जब बाहर से कोई आमद नहीं है तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक जिंदा रहेगा, उसके बाद मौत आ जाएगी। और आप कह रहे हैं कि आखिरी वक्त तक जब तक कि मौत नहीं आ जाती रिस्क उसके हिस्से का पहुंचता रहता है। तो जब उसने अपने को ऐसे किले में महसूर कर लिया जहां से एक चूंटी का भी गुजर नहीं है तो उसके हिस्से का रिस्क कैसे पहुंचेगा? अब 2 दिन 4 दिन जब तक है वो जिंदा रहेगा, उसके बाद मौत उसके हिस्से का रिस्क का मौत आ जाएगी ना। उसने कहा हाँ मौला तो मर ही जाएगा। कहा मौत को लाने वाला जो फरिश्ता है वो कहां से जाएगा? जब तू कह रहा है कि एक चूंटी के जाने की जगह न छोड़ी हो तो वो मौत का फरिश्ता कैसे जाएगा? उसने कहा मौला ये तो मौत का फरिश्ता है, वो तो कहीं से भी दाखिल हो जाएगा। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, जिधर से मौत का फरिश्ता जाएगा उधर से ही रिस्क का फरिश्ता भी उसके साथ साथ जाएगा। यानी इस कदर जो है रिस्क का मामला जो है जुड़ा हुआ है इंसान से। लेकिन इंसान है क्यों कहता है कि हमारा रिस्क कहाँ है, पता नहीं हमें मिलेगा। मैंने कहा जब समंदर की तहों में 2 पत्थरों के माबैन उस नन्ही सी मखलूक को अल्लाह ने फरामोश नहीं किया, इतनी बड़ी मखलूक को कैसे अल्लाह पर परेशान देखना चाहेगा? ये और बात है कि हम अपने उस जाहिरी रिस्क को तलाश करने में सरगर्दा, हालांकि सही करने के लिए कहा गया, कोशिश करने के लिए कहा गया, लेकिन जो हिस्से में है वो मिल के रखे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे हिस्से का। और इसीलिए मौला फरमाते हैं कि अगर इंसान ये सोचता है कि हमारी अक्लमंदी पर, खैरतमंदी पर अल्लाह ने इस रिस्क को रखा है तो उसकी ये भूल है। अक्सर ये भी होता है कि हम चूंकि इतने ज्यादा अक्लमंद हैं इस वजह से मुझे रिस्क मिल रहा। मौला फरमाते ना, अल्लाह ने रिस्क की तकसीम अक्ल पे नहीं रखी। अगर अक्ल पे रखता तो 2 मखलूकात ऐसी थी कि जो दुनिया में मर जाती बगैर रिस्क। फरमाते हैं कि एक वो जिनको अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी, जानवर, उनको कहां से रिस्क मिलता? दूसरे वो जो दीवाने हो गए हैं, जिनको शऊर ही नहीं है, उन्हें कैसे रिस्क पहुंचता? अल्लाह ने तकदीर पर रखा है रिस्क को, किस्मत पे रखा है रिस्क को, अक्लमंदी पे नहीं रखा। कितने अक्लमंद ऐसे हैं कि बार बार शिकवा करते रहते हमारे हिस्से का रिस्क कहाँ है, और कितने ऐसे हैं कि बस वही इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह कहाँ से दे रहा है कुछ पता नहीं चलता है। सलवात भेजे बेपनाह रिस्क देने वाला तो वो है, वो खालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द।
जो भी जमीन और आसमान के माबैन है सब के सब तस्बीह में मशगूल है, सब के सब तस्बीह करते हैं। और अल्लाह की तस्बीह का अंदाज मखलूकात में जुदा हो सकता है, लेकिन जैसा कि खुद बार बार ताकीद की गई कि तस्बीह करते वक्त परेशान न होना, गिड़गिड़ाते वक्त मायूस न हो जाना, बल्कि ये देखना कि जो तस्बीह हो रही है बस उसकी बारगाह में कबूल हो जाए। किसी ने कहा मौला ये बार बार हम जब सदा लगाते हैं, पुकारते हैं, हमें कैसे मालूम हो कि ये सदा बाब इस्तिजाबत से टकरा रही है? कभी कभी अल्लाह ये भी चाहता है कि जिस बंदे की आवाज को ज्यादा पसंद करता है, चाहता है कि वो बंदा मेरे सामने ज्यादा देर तक गिड़गिड़ाता है। और इसीलिए छठे इमाम इमाम जाफर सादिक के सिलसिले से कभी मायूस ना होना, बल्कि दरवाजा खटखटाते रहना, कभी ना कभी तो दरवाजा खुल ही जाएगा। ये और बात है कि उस मसलहत को हम समझते नहीं है, उस मसलहत को हमें नहीं पता है कि कब उसकी रहमत का दरवाजा खुलेगा। हमें हुक्म ये है कि दरवाजा खटखटाते रहो, हमें ये हुक्म है कि बार बार गिड़गिड़ाते रहो। अब उसकी मिसाल जाहिरी दुनिया में यही हो सकती है कि एक बच्चा है, अपने बाप से जब सर्दियों में आइसक्रीम तलब करता है तो चूंकि बाप को पता है कि इसका नुकसान क्या है, बच्चे को नहीं पता कि इस डिमांड में नुकसान क्या है। वही हाल हमारी, वही हाल और वही कैफियत हमारी है कि हम उसके सामने अपने मुतालिबात तो रखते हैं, हमें खबर नहीं है कि इस वक्त हमें मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, उसकी मसलहत से नाचना और नागा। इसीलिए बार बार कभी कभी होता यह है कि वो चीजें तलब करते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे लिए मुफीद हो। अब मसलहत तो वो जानता है कि किस वक्त इसे मांगना चाहिए और किस वक्त नहीं मांगना चाहिए। और कभी कभी हम अपनी उजलत पसंदी में भी कुछ काम ऐसे कर लेते हैं कि उस वक्त हम अपनी उजलत पसंदी से किसी हलाल को हराम में तब्दील भी कर लेते हैं। आज की दुनिया में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ताकीद भी यही की गई है, और रिस्क के मसाइल में सबसे ज्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि जो मिले वो हलाल रिस्क मिले। कभी कभी बेखबरी भी हो जाता है कि हलाल ढूंढने तो निकलता है, लेकिन उजलत पसंदी से कभी कभी अपने लिए वो हराम कर लेता है। उसकी मिसाल ऐसी है कि मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब क्या खूबसूरत मिसाल है, और मैं अक्सर इस मकाम पे जरूर देता हूँ ये मिसाल, क्योंकि नौजवानों को कभी कभी ये भी होता है कि अब इतना ताखीर से, इतना देर से एक चीज के लिए सही कर रहा हूँ, एक ही चीज मांगे जा रहा हूँ, मिल नहीं रही है, तो अब जैसे भी मिले, जिस अंदाज में भी मिले, मिलना चाहिए। कहते मौला एक दिन मस्जिद में जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, अपनी सवारी की लजाम एक शख्स के हाथों में दी, कहा भाई ये लजाम ले और थोड़ी देर मेरी सवारी को देखता रहे, मैं जब तक नमाज पढ़ के मस्जिद से आ जाऊं। अब इधर मौला मस्जिद के अंदर गए, उसने लजाम देखी, खूबसूरत लजाम थी। अब नियतों का फतूर थोड़ी देर में इधर से उधर हो ही जाता है। उसने कहा कितनी देर बैठेंगे और उसके बाद आने के बाद पता नहीं क्या देंगे क्या नहीं देंगे। उसने लजाम ली, निकाली, सवारी वहीं छोड़ी और बाजार लेके गया, उसने फरोख्त कर। अब जो मौसा मस्जिद से बाहर निकले तो देखा तो सवारी तो है, लजाम गायब। आए घर कंबर, आज एक शख्स को लजाम दी थी कि थोड़ी देर तक ठहरा रहे, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। अब वो लजाम लेके चला गया, कोई बात नहीं, तुम दूसरी लजाम लेके आओ। मसलन उसको 2 दिनार हदिया देना था मौला को, जो भी देना था, लेकिन अब वो तो लेके चला ही गया। मौला ने कंबर के हाथों में रखे पैसे, कहा लो ये 2 दिनार और जाके मुझे नई लजाम लेके आओ। बाजार पहुंचे जनाबे कंबर, देखा तो मौला की वही लजाम एक शख्स लिए हुए जा रहा। कहा भाई ये लजाम तुम्हें कहाँ से मिली? कहा एक शख्स से खरीदी है। कहा कितने में खरीदी है? इतने दिनार में खरीदी है। अच्छा लो, मसल से 2 दिनार के 2 दिनार उसके हाथों में रखे, इधर 2 दिनार उसको मिले, उसने लजाम दे दी। अब मौला की ही लजाम लेके जनाबे कंबर फिर, मौला ये आप ही की लजाम है ना? मौला ने कहा हाँ ये तो है, मगर कंबर तुम्हें कहाँ मिली? का एक शख्स बाजार में बेचने के लिए जा रहा था, मैंने उससे पूछा कितने में इसे खरीदा है या कितने में बेचने का इरादा है, उसने 2 दिनार तलब किए, मैंने दे दिया उसके हाथों में, और ये आपकी लजाम ये ली। अब मौला के जुमले सुने, क्या खूबसूरत कलाम है। और कलाम अली
और उसमें कोई मोती न टका हो। क्या बात है। फरमाते हैं कंबर आसमान की जानिब पहले देखा, मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं जिस वक्त मुसल्ले पे कदम रख रहा था उस वक्त मैंने इरादा कर लिया था और तहैया कर लिया था कि जब मैं नमाज से फारिग होऊंगा तो जितनी देर तक इसने लजाम थामी हुई थी इसकी उजरत में इसे 2 दीनार दूंगा। सुभान अल्लाह। मौला ने क्या कहा, कंबर इसकी उजरत में मैं इसे 2 दीनार देने का कस्द मुसल्ले पर ही कर चुका था। इसको मिले कितने? कहा मौला 2 दीनार। मौला 2 दीनार। कहा मैं कितना देता? कहा 2 दीनार। अब मौला ने जनाब कंबर की तरफ देख के फरमाया कि कंबर, जो इसे हलाल में मिलने वाले थे अपनी उजरत पसंदी से इसने उसे हराम में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह। मिले वही 2 दीनार, उसमें फर्क नहीं हुआ, लेकिन मिलना ऐसा कि जो इसे हलाल में मिल रहा होता वो इसे हराम में मिला। आज यही तो दुनिया की तस्वीर है। कभी कभी हम वाकई नहीं समझ पाते कि जो हमें मिल रहा है इसको हम अपनी उजरत पसंदी से, हालांकि वो तकदीर में हमारी किस्मत में वही 2 दीनार थे, लेकिन उसको हमने अपनी उससे हराम में तब्दील कर दिया। बेशतर ऐसी मिसालें हैं कि हम वाकई उजरत पसंदी में कभी नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। अच्छा, फिर वो मशहूर जुमला जिसे बार बार दोहराया जाता है कि अल्लाह ले के भी आजमाता है, अल्लाह दे के भी आजमाता है। लेने के बाद देखता है कि हमारा शुक्रगुजार है कि नहीं, और देने के बाद भी आजमाता है कि दिया है तो उसका सही इस्तेमाल कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और कभी कभी वही होता है कि हमें मिलता रहता है जब तक हमको खबर ही नहीं होती, लेकिन जब वो लेने पे आता है तब हम चीखने लगते हैं। हालांकि हमारा चीखना आपस है। क्यों? इस वजह से कि हम उस माल के मालिक नहीं है बल्कि अमीन है। कल भी मैंने जुमला कहा था कि हमें जो अल्लाह ने दिया हुआ है उसके हम मालिक नहीं है बल्कि अमीन है, अमानतदार। और जब शख्स ये समझ ले कि हम अमानतदार हैं तो उसको फिर किसी भी जगह पे जहां अल्लाह चाहे वहां खर्च करने में कोई दरेर नहीं होता। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, एक और सलवात भेजे। तो अदीनो ये है उस तस्बीह का कमाल। और कितने कितने वाकयात ऐसे हैं कि जिसमें अल्लाह की बारगाह में तस्बीह करने वाले तस्बीह कर रहे होते हैं और बारगाह इलाही से जितने भी अल्लाह के वो बंदे कि जिनकी आवाज फकत आवाज नहीं होती बल्कि खालिक ने उनकी आवाज को हम लोगों के लिए एक मुनाजात बना दिया। हम अपनी आवाज को, इसीलिए कहा जाता है कि दुआए मासूमीन, जितनी भी मासूरा दुआएं हैं वो सिर्फ दुआ ही नहीं है, मुनाजात ही नहीं है, बल्कि दुआ की दुआ है, तरबियत की तरबियत। हर दुआ में तरबियत का पहलू। इलाही कम मिन कबीहिन सतरता व कम मिन सनाइन जमीलिन लस्ता हलन नशरता। ये दुआ कुमैल है। मौला फरमाते हैं कि या ए मेरे अल्लाह, कितनी ऐसी खूबियां, कितनी ऐसी अच्छाइयां, कितनी ऐसी नेकियां हमारे अंदर पाई जाती हो जिसका हमारा नफ्स भी नहीं जानता कि हमारे अंदर ये अच्छाई है, और कितनी ऐसी बुराइयां हैं हमारे अंदर जिनको हमारा नफ्स अच्छी तरीके से जानता है ये मेरे अंदर बुराई है, लेकिन उसको तूने पूरे माशरे से, पूरे माहौल से, पूरे समाज से उसे छुपा रखा है और हमारी अच्छाइयों की तस्वीर की। और यकीनन है यही ना कि आज माशरे में हर इंसान जो अच्छा बना हुआ है ये उसका करम है कि हमारी अच्छाइयों के पहलू को सब पर उजागर कर दिया, हमारी बुराइयों का कोई एक पहलू भी किसी पर उजागर नहीं, उस पर अपनी रहमत का पर्दा डाला। और यही मौला फरमाते हैं कि कितनी ऐसी अच्छाइयां हैं, लेकिन ऐसा समाज, ऐसा माशरा जहां रसूल को मुंतखब किया गया हो। और मैं तो कहता हूं कि रसूल आए नहीं और तबलीग नहीं की, बल्कि तबलीग का मोजज़ा किया है। 23 साल की तबलीग वो तबलीग नहीं थी बल्कि तबलीग का मोजज़ा था। वरना ऐसा माहौल जहां बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता हो ऐसे बेरहम माशरे में, और ऐसा वैसा। अब तारीख जाके पढ़िए, जो हिस्ट्री है अरब की उस वक्त की, कैसे सफाक माहौल में हुजूर को उतारा गया कि जहां बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। एक अजीब वाकया है, लिखा है उस अरब की तारीख में, आप पढ़ेंगे
तो आपको पता चलेगा वाकई कैसा माशरा रहा होगा। ऐसा बेरहम माशरा जहाँ के लिए मिलता है कि वहाँ पे बेटियों की ये नाकदरी कह लें या इंसानियत यानी शर्म से डूब जाए, वो मकाम था कि जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता हो। लफ्ज़ जिंदा दरगोर जब भी हम पढ़ते हैं गुजर जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता, लेकिन कुछ वाकयात तो वाकई ऐसे हैं कि झिझोड़ देते हैं इंसानियत को। कैसे माशरे में हुजूर को भेजा गया। कहते हैं कि एक शख्स की बेटी, एक ही बेटी, अब चूंकि माहौल और माशरा ऐसा था कि बेटियों को जिंदा रहना ही मुश्किल था, तो जैसे जैसे वो बेटी बढ़ती रही उसको ये फिक्र सताने लगी कि अब चूंकि एक ही बेटी है, मोहब्बत भी बेपनाह करता था, तब इसको अपने हाथों से जिंदा दरगोर कैसे करूं। कभी इरादा करता था, कभी पलट आता था उस इरादे से। एक दिन लिखा है तारीख ने कि ये लेके चला गया, सहरा में पहुंचा, और सहरा को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है सहरा कैसा होता है। दूर दूर तक बेआब हो गया। सहरा में पहुंचने के बाद जब इसने देखा कोई नहीं है देखने वाला, अपने ही हाथों से मिट्टी हटाने लगा। वो मिट्टी हटाने के बाद एक जब गड्ढा था तैयार हो गया, उस गड्ढे के अंदर उस बेटी को लिटा दिया। अब क्या यानी अब आप सोचे, बेटियां तो वैसे भी सबको प्यारी होती है, उनकी बातें और उसमें जो हलावत होती है उसको एक बेटी का बाप ही महसूस कर सकता है। कहते हैं उस बेटी ने जिस वक्त उसने गड्ढे में डाला तो कहा, बाबा जान आपकी दाढ़ी में जो मिट्टी लगी हुई इसको मैं साफ कर देती हूँ। अब आप सोचिए क्या क्या मंजर रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद माशरा, बेरहम माशरा, जिसकी तासीर वो कर रहा था, उसे मिट्टी डालना छोड़ दिया, यहाँ तक कि मिट्टी डाल दिया उसको। कहते उसी कब्र पे बैठ कर रोया भी हो। अब जो घर में आया तो बाप है, माँ तो जाहिर है कि माँ का जिगर तो कुछ और ही होता है। कहते हैं कि दोनों खूब मिलके रोए, लेकिन अब इंसानियत ये रो नहीं रहे थे, बल्कि इन पर इंसानियत रो रही। ये क्या कर रहे थे? कहते जिनको बहते हुए आंसू भी न समझा पाए हों, उनको रसूल ने एक लफ्ज में समाज के दरिंदे से इंसान बना के पेश कर दिया। ये रसूल की तबलीग नहीं थी, बल्कि तबलीग का मौजज़ा। ऐसे बेरहम माशरे में अरहमुर राहिमीन का तारुफ करा देना, उस वाहिद व यक्ता का तारुफ करा देना, यही मौजज़ा था। जहां ऐसे सफाक लोग बैठे हुए हैं, जहां ऐसे बेरहम लोग बैठे हुए हैं। आज जब किसी सफाकी की बात आती है कि ये सब ऐसा माशरा जहां सफाकी इतनी पाई जाती है, मैं कहता हूं कि इनकी तारीख तो जरा पढ़ लो। ये तो ऐसे सफाक माशरे से होके आए हैं। अब ऐसे में हुजूर अगर अरहमुर राहिमीन का तारुफ करा रहे हो, तो मैं तो यही कहता हूँ एक ही जुमला, ये तबलीग नहीं कर रहे थे, बल्कि तबलीग का मौजज़ा था जो 23 साल में कमाल को पहुंच गया। और ऐसा कमाल को पहुंचा कि आवाज आई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। दीन कामिल हो गया। यानी ऐसे माहौल से गुजर के जो जंगलों में रहते थे, उन्हें इंसानी बस्तियों में लाके बसा दिया। जो इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक न थे, उन्हें मुसलमान बना के साहिब ईमान कर दिया। अब ऐसे में उसके साथ ये सलूक हो कि अगर वो कहे कि इस तबलीग का कोई अजर नहीं चाहते सिवाय ये कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, यानी इतनी बड़ी मेहनत और उसका कोई अजर नहीं चाहिए तुमसे, फकत इतना है कि अजर के तौर पर हमारे कराबतदारों से मोहब्बत, और मोहब्बत के नाम पे जो किया गया, अल्लाह अकबर। होना तो ये चाहिए था कि रसूल की आग बंद होते ही ये सारा मुसलमान उठ के जाता और कह रहा होता कि आप उस रसूल की बेटी है ना जिसने हमारे लिए पत्थर खाए, हमारे लिए अजियतें बर्दाश्त की, लेकिन एहतराम तो कुजा, दरवाजे पे आग और लकड़ी लेके आ गए। अभी कितने दिन गुजरे थे, हुजूर की आंखें बंद और बेटी को ये मरसिया पढ़ना पड़ा। सुब्बत अलैया मसाइबुल लवल सुब्बत अलैया बिसिरदा। मैं तो कहता हूँ कि ये फकत शहजादी के दरवाजे पर आग नहीं थी, बल्कि आग
मदीने से गुजर के करबला तक पहुंच गए। अल्लाह अकबर। आज 2 मुहर्रम हो गई अज़ादारों। मुसलसल सारी दुनिया में इस वक्त जहाँ कहीं भी अज़ादार बैठे हुए हैं, चाहे वो ऑनलाइन मजलिस में शरीक हैं, चाहे वैसे मजलिसों में शरीक हैं, हर जगह ये तज़किरा हो रहा है। आज हुसैन मजलूम करबला वारिद हो गए, वारिद करबला हो गए। हुसैन का काफिला करबला पहुंच गया। जिस वक्त हुसैन इस सरजमीन पे पहुंचे हैं, किसी से पूछा कि इसका नाम क्या है, किसी ने कहा इसका नाम नैनवा है, किसी ने कहा गदरिया है, किसी ने कहा शत्ते फुरात है। एक शख्स आगे बढ़ के कहता है कि इसका नाम करबला है। हुसैन ने कहा यही मेरा काफिला ठहरा दिया जाए, यहाँ मेरे काफिले को रोक दिया जाए और यहीं खैमदन हो जाएंगे। करबला पहुंच गए अज़ादारों। लेकिन जनाब ज़ैनब औलिया मकाम का बयान यह है कि जिस दिन से काफिला करबला पहुंचा है, मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैं बार बार भैया से यही कहती थी, भैया किस सरजमीन पर आ गए, यहाँ जब से आई हूँ मेरा दिल नहीं लग रहा है। एक मर्तबा हुसैन गोया हुए बहन, ये वो जमीन है कि जंगे सिफीन से बाबा जब पलट के आ रहे थे तो इस जमीन पर थोड़ी देर के लिए ठहरे थे। भैया हसन के जानू पर बाबा का सर था। थोड़ी देर आलम हुनूदगी में गए, एक ख्वाब देखा। बाबा ने उस ख्वाब को भैया हसन से बयान किया, ए मेरे लाल हसन, इस जमीन पर पता नहीं क्या है, मैं ऐसा ख्वाब देख रहा हूँ कि चारों तरफ से खून आलूदा है और इसमें मेरा हुसैन गंदा हो रहा है। अल्लाह अकबर। ये सरजमीन करबला है, ज़ैनब यहाँ करा, इसको हम आबाद करेंगे, इसको हम आबाद करेंगे। कहते हैं बनी असद को बुलाया, बनी असद को बुलाने के बाद फरमाया, बनी असद ये मैं जमीन ले तो रहा हूँ तुमसे, लेकिन मैं तुम्ही को हिबा करती जाऊंगा। इस जमीन का ख्याल ये रखना, ये जमीन का ख्याल रखना। मौला क्या ख्याल रखना है? कहा बाद शहादत हो सके तो आके मुझे दफन कर देना, अगर खुद ना पाना तो बच्चों को भेज देना, एक एक मुट्ठी का मेरी तुरबत में आगे कर देना। अल्लाह अकबर। उसके बाद फरमाते हैं, हाँ ये भी ख्याल रखना कि जो मेरी कब्र का निशान पूछते हुए आए, मेरी कब्र का पता पूछते हुए आए, उस कब्र का पता बता देना, और हो सके तो उन्हें 3 दिन मेहमान अपना रखना। ये वसीयतें जनाबे मजलूम करबला जब कर चुके, बनी असद को जिसकी आज भी तासीब वो करते हैं, आज भी करबला में जो लोग जाते हैं ज़ियारत कर चुके, उन्होंने देखा होगा वो मंजर कि आज भी उस तासीब में अल्लाह अकबर। लेकिन हाँ आज़ादारों, जिस वक्त से ये काफिला आया है, नासिरान हुसैनी में किसी को मौला ने तलब नहीं किया। असर आशूर आप सुनते हैं ना कि हर एक शहीद जो उस वक्त मौजूद था, हुसैन चिराग भूल करके पूछते थे जिसे जाना हो चला जाए, लेकिन कोई भी नहीं उठा, कोई भी जानिसार नहीं गया। लेकिन किसी को मौला ने बुलाया भी नहीं, सिवाय एक के जिसे खत लिख के बुलाया। हाय बचपन का दोस्त हबीब इब्न बदाई। क्या लिखा था? मिनल गरीब बिल हुसैन इला रजुल फकीह हबीब। गरीब हुसैन की जानिब से ये खत है, रजुल फकीह। क्या अज़मत रही होगी जनाब हबीब की, कि मैं कहता हूँ कि हम और आप किसी को भी कुछ भी कह दे, लेकिन मासूम अपने लबे मुबारक से आपने तहरीर में यह किसी को लिख के दे रहा, रजुल फकीह। क्या अज़मत के मालिक रहे होंगे जनाब। क्योंकि जनाब ज़ैनब ने कहा था, भैया लश्कर पर लश्कर आ रहा है, फौजों पर फौजें आ रही है, लेकिन आपका कोई नासिर नहीं आया, आपका कोई नासिर नहीं आया। आज़ादारों, उस वक्त जनाब हबीब को आपने खत लिखा। कहते हैं नामा पर खत लेके चला, कासिद खत लेके चला। उस वक्त की कैफियत ये लिखी थी कि कूफे में आलम ये था कि कोई शहर से बाहर नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से कासिद जब पहुंचा है दरवाजे पर और दफ्फुल बाग किया है, उस वक्त लिखा यह है कि हबीब खाने पर बैठे हुए थे, जैसे ही दफ्फुल बाग किया उधर से आवाज आई। कौन? इधर से आवाज गई, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद। अरे हुसैन का कासिद का नाम सुना, जैसे ही हबीब उठे सरसीना पीटते हुए दरवाजे पर गए, अरे मेरे मौला का कासिद आया है। अब जो देखा तो सामने क्या देखा कि खत ली हुई, खत का दामन जैसी चाक किया, तहरीर देखी, तहरीर का देखना था। जो भी हज़रात ज़ाहिर की तारीख ने जो लिखा है
اس کو صرف پڑھا جا سکتا ہے, محسوس کیا نہیں جا سکتا ہے کہ کیا کیفیت رہے ہوگی جناب حبیب ابن مظاہر. کہتے ہیں گئے اور جانے کے بعد زوجہ کے سامنے فقط ایک فقرہ کہا. اب یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ایک آزمائش اور ایک امتحان تھا زوجہ کا, جو ایک جملے ادا کیے جناب حبیب نے. کہا ہاں خط تو آیا ہے آقا کا, لیکن میں سوچ یہ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ زوجہ حبیب اٹھی, کہا لو میری رضا اوڑھ کے بیٹھ جاؤ, میری رضا اوڑھ کے بیٹھ جاؤ, ہائے آقا تمہیں طلب کرے اور تم یہ عذر پیش کر رہے. اے آزادارو, اتنا سننا تھا کہ مرتبہ حبیب نے پکار کے کہا میرا مقصد یہ نہیں تھا, میں دیکھنا چاہتا تھا میرا مظلوم آقا, ارے مجھے ہی فقط نہیں طلب کر رہا ہے, یہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا ہے. اے آزادارو, حبیب میں تو شرف سے نکلی. اب تاریخ کہتی ہے کہ باہر کوفے کے عالم یہ ہے کہ پہلے ہی غلام سے کہہ دیا تھا کہ اس گھوڑے کو, اس رہوار کو لے جا کے شہر سے باہر ٹھہرو اور میرا انتظار کرو. کہتے ہیں جناب حبیب جب پہنچے تو عجیب منظر تھا. غلام کہہ یہ رہا تھا کہ اگر میرا آقا نہ آیا تو میں سوار ہو کے اپنے آقا حسین کی نصرت کے لیے چلوں گا. اے آزادارو, جیسے جناب حبیب نے یہ سنا تو کیا کیفیت رہی ہوگی جناب حبیب کی. ہائے میرے مظلوم آقا پر یہ وقت آ گیا ہے کہ غلاموں کو بھی یہ حسرت ہے کہ میں اپنے مظلوم آقا پر فدا ہو جاؤں. اے آزادارو, جیسے ہی جناب حبیب رزمگاہ کربلا میں وارد ہوئے, حسین نے ایک مرتبہ فرمایا علی اکبر جاؤ استقبال کے لیے, قاسم آگے بڑھو استقبال کے لیے. ایک نشان ابھی باقی تھا نا جو حبیب کو دینا تھا. عباس جاؤ حبیب کے استقبال کے لیے. اے آزادارو, جب آتے ہوئے منظر دیکھا جناب حبیب نے, کہتے ہیں گھوڑے سے اپنے کو گرا لیا, گھوڑے سے اپنے کو گرا لیا, زمین کربلا میں ایک مرتبہ پیشانی رکھی. ہائے اس غلام کی اتنی عظمت. اے آزادارو, بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ خیمے کے پس خیمے کے کوئی حبیبی آواز دے رہی, حبیب تمہیں شہزادی زینب نے سلام کہا. ارے سننا تھا کہ حبیب نے سر سے امامہ اتارا. ارے کجا میری شہزادی, کجا یہ غلام. حبیب یہ تمہیں سلام نہیں ہے بلکہ شام غریبہ زینب کی فریاد بھی ہے. مقتل کو دیکھ کے فرمایا تھا اے بھیا عباس, ارے ترائی میں سو گئے اے بچپن کے دوست حبیب. زینب تنہا رہ گئی, خیمے جل گئے, بیویاں جن کے سروں سے چادریں الہی بحق محمد وانت المحبوب وبحق غنی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن انت المحسن وبحق الحسین انت قدیم الاحسان وبحق الائمة تسعة الطاهرين من ذریة الحسین علیہ السلام. یا اللہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما. پرچے ادا پر بیٹھے ہوئے تمام مومنین جہاں کہیں بھی اس وقت اللہ ان متصل تھے مومنین, جہاں جہاں بھی مجلس میں شریک تھے پروردگارہ, ان تمام شرکاء کو, اور جہاں جہاں بھی آباد مومنین ہیں پروردگارہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ذکر کے کرنے والوں کو, ذکر کے سننے والوں کو, کسی بھی مصیبت میں کہیں بھی کوئی مومن گرفتار ہے, صدقے میں حلال مشکلات مولا کائنات کے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے میرے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. اے میرے اللہ آج کے داعیہ مجلس جناب شبیر جمانی صاحب اور جناب محمد جمانی صاحب, ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے اللہ ان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما, ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ ہم سب کے اس پرسے کو بارگاہ سرکار حضرت حجت و قبولیت کا شرف عنایت فرما. ان کے ظہور میں اب تعجیل فرما اور ہم سب کو سرکار کے ناصرین میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما. آپ حضرات جناب شبیر جمانی صاحب اور ان کے فرزند جناب محمد جمانی صاحب اور ان کی اہلیہ کے تمام مضمین, ان کی تمام اعزاء و قربان تمام مرحومین کی حضرات مومنین. کل سے مجلس کا ٹائم تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ کل ٹھیک 7 بجے یہ آن لائن مجلس جو ہے شروع ہو جائے گی.
آپ سے گزارش ہے کہ کل سے شام میں کویت کے ٹائم کے مطابق ٹھیک 7 بجے شام کو ماتم حسین. میں نہایت ہی ادب و احترام سے جناب شاعر بیاس مظفر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ فرش اعزاز آ کے یا حسین سلام علیہ کے لال کا بسر ہے. یا حسین یا حسین یا حسین دامن پکڑ کے کہتی ہیں بابا کب آؤ گے، لے جاؤ گے ہمیں کہ یہیں چھوڑ جاؤ گے. بیمار کی خبر بھی کسی سے منگاؤ گے یا پیار میں سکینہ کے ہم کو بھلاؤ گے. بچپن بھی تب بھی اور یہ غضب کی جدائی بھی، ماں باپ بھی بچھڑتے ہیں بہنیں بھی بھائی بھی. مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا. جانے لگے شبیر تو کہنے لگی صغرا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا. بیماری پہ تنہائی کا خنجر نہ چلاؤ، کیوں نظریں چراتے ہو تمہیں جانا ہے جاؤ. ایک بات میری مان لو اچھے میرے بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا. جاتی ہے کنیزیں بھی کنیزوں ہی میں رکھ لو، کب میں نے کہا ہے مجھے ناکے پہ بٹھا دو. پیدل ہی سفر ہوگا میرا کر وہ بلا کا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا. وعدہ ہے کہ زحمت نہ سفر میں کوئی دوں گی، میں بالوں سے سایہ علی اصغر کا کروں گی، میں بالوں سے سایہ علی اصغر کا کروں گی. رہنے نہیں دوں گی میں تمہیں راہ میں پیاسا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا. میں پانی پلاؤں گی تیرے ناکے کو بابا، میں پشت پہ رکھوں گی صدا مشک سکینہ. بے شک کرے آرام سفر میں تیری فضا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا. اکبر کی زیارت میں کیے جاؤں گی ہر دم، دیدار ہے اکبر کا میرے زخموں کا مرہم.
دیدار ہے اکبر کا میرے زخموں کا مرہم مرنے سے بچا لو مجھے چھوڑو نہیں تنہا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے اکبر جو چلے جائیں گے میں کیسے جیوں گی فرقت کی اذیت کو بھلا کیسے سہوں گی فرقت کی اذیت کو بھلا کیسے سہوں گی مر جائے گی مر جائے گی مر جائے گی صغرا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو مجھے سمجھانے لگے بیٹی کو یوں حضرت شبیر سغرا ہمیں مقتل میں لیے جاتی ہے تقدیر سغرا ہمیں مقتل میں لیے جاتی ہے تقدیر یہ کہہ کے صدائے نہ دو پھٹتا ہے کلیجا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا چلو بابا بیماری ہو گرمی کی اذیت نہ سہوگی تم راہ مصیبت میں سفر کیسے کرو گی تم راہ مصیبت میں سفر کیسے کرو گی ہو جائے شفا خیر سے تب خط میں یہ لکھنا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے بابا نانی کی حفاظت میں دیے جاتا ہوں تم کو اماں کی لہد دیکھ کے سوچا کرو ہم کو اماں کی لہد دیکھ کے سوچا کرو ہم کو اب ضد نہ کرو جاؤ یہ کہنا نہ دوبارہ مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا پھر سورہ یاسین کو پڑھنے لگے مولا پھر سورہ یاسین کو پڑھنے لگے مولا بیٹی کو دعا دے کہ پکارے شہ والا بیٹی کو دعا دے کہ پکارے شہ والا مر جاؤں گی اب غموں سے اگر تم نے پکارا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا اے ناصر و ریحان روانہ ہوئے سرور اے ناصر و ریحان روانہ ہوئے سرور دیکھا کہ یہ مڑ مڑ کے بہن کو علی اکبر
دیکھا کیے مڑ مڑ کے بہن کو علی اکبر اور ہاتھوں کو ملتی ہوئی کہتی رہی سغرا چلے چلو بابا چلے چلو بابا چلے چلو بابا چلے چلو بابا ماتم حسین حسین السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا محمد بن عبد اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا افضل المرسلین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سید النساء العالمین، السلام علیکم امام الحسن المجتبی، السلام علیکم امام زین العابدین، السلام علیکم امام محمد الباقر، السلام علیکم امام جعفر الصادق، السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولاي امیر المومنین و سید الوصیین علی بن ابی طالب، السلام علیکم ابا عبد اللہ الحسین، السلام علیکم علی اولاد الحسین و اصحاب الحسین، السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم امام موسی الکاظم، السلام علیکم امام تقی الجواد، السلام علیکم امام علی النقی، السلام علیکم امام حسن العسکری و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولاي غریب الغرباء، السلام علیکم الى الضعفاء والفقراء، السلام علیکم ششیت والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا شمس الشموس وعریس النفوس ایها المدفون بغرد طول، السلام علیکم یا ایها السلطان ابو الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولاي صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصاره اللهم صل على محمد وعلى محمد